वो कह रहे हैं कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि जो आप गीत सुन रहे थे उसमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा था, लेकिन ये मेरी तरफ से नहीं है, क्योंकि जहां से ये इशू होता है उधर से ही कोई ना कोई मसला आ रहा था, कोई सिस्टम जो है उसमें मसला था, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन नेक्स्ट टाइम उम्मीद करता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। यस पास्टर। Can you hear me well now? I hear you, but very slow voice. Me? Yeah. If you speak loud, it's okay. Then I can hear properly. I'm hearing you, but Are very you hearing low me voice. now? Well? Yes. Yes. Now it's better. So it means you have to Okay. speak in loudly. I just wanted to say sorry because internet No, it's preparation okay. is not good. That's how you explain it. But through this time, I can sense that we need to prepare our heart before God more clearly, and we need to change our attitude. और मैं चाहता हूँ कि हमें सबको अपने आप को तब्दील करने की जरूरत है, क्योंकि हमें अपने आप को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खुदा के साथ खालिस दिल के साथ आने की जरूरत है। Each and every moment we need grace of God. और इस वक्त जब हमें जरूरत है उसके फजल की, Because all things are done by God. क्योंकि ये सब चीजें जो है खुदा की तरफ से हैं। And this is the works of God. ये खुदा का काम है। God must help us, otherwise we ruin his work. खुदा जो है वो हमारे साथ है, वरना हम तो सिर्फ अपने ही काम करते रहते हैं। As I learned from Pastor Park to prepare the works of God in the heart of very sensitiveness. और जैसे मैंने पास्टर पाक से इस बारे में सीखा खुदा के काम को कैसे करना है, तो ये बड़ा ही नाजुक काम होता है, नाजुक हिस्सा होता है। So we need all the time the grace of God. क्योंकि हमें हर वक्त खुदा की फजल की जरूरत होती है। Okay, for today, this Sunday service, let us open Matthew chapter 11. तो आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे मत्ती 11 बाब Verse 28 उसकी 28 आयत up to 30. Let us read together. हम पढ़ते हैं इकट्ठे। मत्ती 11 बाब उसकी 28 से 30 आयत तक। I will read in English and sister read in Urdu. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। For my yoke is easy and my burden is light. क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। आमीन। Good morning, everyone. खुशामदीद कहता हूँ आपको। Today, actually, I wanted to share with you about the joy of participating in the works of God. आज मैं आपको ये इस चीज के बारे में बताना चाहूंगा कि जैसे हम खुशी के साथ कैसे खुदा के काम को कर सकते हैं। All of us, we want to serve God and we want to follow and do his work, right? हम सब जो है अपने खुदा के काम को भी कर रहे हैं, अपने जिंदगी के कामों को भी कर रहे हैं, और ऐसा ही हो रहा है। But this works of God is not just anyhow. लेकिन ये जो खुदा का काम है ये सिर्फ ऐसे ही नहीं है। And the works of God is not just as you want. और खुदा का काम ऐसा नहीं है कि जैसा आपकी मर्जी होगी आप वैसे उस काम को करेंगे। For example, in the Bible, जैसे मिसाल के तौर पे बाइबल में there is man called Ussa. वो Ussa. बाइबल के अंदर एक होसिया और हुसा, होसिया, आई थिंक सो इट्स अ होसिया। It's a Uzzah. Yeah, it's a Hosea. That is the book of Old Testament. Is it so?
I think so. Second Samuel, Uzzah, in English term. Let me open the 2 Samuel Yes. chapter. 2 Samuel chapter 6, verse 6. बाब उसकी छठी आयत. उज़ा. Uzzah. Yes. So this Uzzah is the one who was holding the Ark of God. हम देखते हैं ये जो उज़ा था इसने खुदा The Ark of God because the oxen was stumbled here. इसका ये मतलब नहीं था कि वो उसको हाथ लगाना चाहता था, बल्कि जिस पर वो संदूक था वो डगमगा रहा था और गिरने वाला था. But when you read verse 7, then the anger of the Lord was arose against Uzzah, and God struck him there for his error. और हम अगर 7वीं आयत को पढ़ें तो उसमें लिखा तब खुदावन का गुस्सा उज़ा पर भड़का और खुदा ने वहीं उसे उसकी खता की सबब से मारा. Why? I mean, he just to hold the ark of God. मैं सोच रहा हूँ और हैरान होता हूँ कि ऐसा क्यों, जबकि उसने तो सिर्फ और सिर्फ उसको पकड़ा था उस संदूक को. And he just immediately killed by God. लेकिन उसी वक्त खुदा उसको मार देता है. You know, the message of God here is, with our यहाँ जो hand, खुदा we का cannot hold the works, we cannot hold the ark of God. इसमें जो मैसेज है, इस बात में जो गहराई है वो ये है कि हम खुदा के अहद को होल्ड नहीं कर सकते, उसको पकड़ नहीं सकते. It's not only the story here. ये सिर्फ यहीं पर स्टोरी नहीं है. There are many places God expresses anger when people trying to do something by themselves. हम देखते हैं कि बाइबल में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां पर लोग खुदा उनको पनिश करते हैं, जहां पे लोग अपनी मर्जी के मुताबिक जो है तरीकों को करना चाहते हैं, अपनी सेल्फ एफर्ट को दिखाते हैं. Yet we know that God is love of God. हमें पता है कि खुदा प्यार का खुदा है. And God is the one who showed the love. और खुदा वो है जो अपने प्यार को जाहिर करता है. But God also has the anger. लेकिन खुदा को गुस्सा भी आता है. And time to time we just ignore the anger of God because we just think that God is love. और हम वक्त के साथ साथ बहुत सी जगहों पे खुदा के गुस्से को भी देखते हैं, लेकिन हमें यही लगता है कि खुदा जो है वो मोहब्बत का खुदा है. But the Bible says the fear of God is the wisdom. लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है. Fear towards God. और जो खुदा है अगर उसमें गुस्सा भी है. On the other hand, there are people who has no fear of God. लेकिन हम दूसरी तरफ देखें तो बहुत से लोग हैं जिनमें कोई खुदा का खौफ भी नहीं है. I heard of some word from my relative were saying, "Where is God? There is no God." और मैंने बहुत से अपने रिलेटिव से सुना है कि वो ये बोलते हैं कि खुदा किधर है, खुदा तो है ही कोई नहीं. When I hear this word, I was somehow very shocked before God, is because I never wanted him to speak that way. और मैंने जब ये इस तरह देखा तो मैं बड़ा शॉक हुआ, और मैं कभी भी ऐसे तरीके से बयान नहीं कर सकता, इस तरह बोल नहीं सकता हूँ. Though you don't feel God, though you don't see God, God is there for us. Pastor, repeat again, because sometimes the calls are coming between the sermons, so my mic was muted, so I can't hear you. So I disconnected. I'm saying, though you don't see God, though you don't feel God, there is God, and God is always there for us. और जैसे कि आप भले खुदा को ना देख सकते हैं, ना आप अगर भले नहीं डरते भी, कुछ लोग नहीं भी डरते, लेकिन फिर भी खुदा हमारे दरमियान है और खुदा मौजूद है. But we don't have a fear of God. लेकिन हमारे अंदर खुदा का खौफ है ही नहीं. But we just do whatever we want. हमें जो दिल करता है वही करते हैं.
we just pursue what we like to do. और जो हमारे दिल में हमें अच्छा लगता है हम वही करते हैं। Even this is my life. हम कहते हैं कि ये हमारी जिंदगी है, No one can bother me. कोई हमारी परवाह नहीं करता। I can do what I want. और हम कहते हैं कि हाँ, हमारा जो दिल करेगा हम वही करेंगे। I don't care God, I just care what I want. और कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि हम खुदा की परवाह नहीं करते, जो हमारा दिल करेगा हम वो करेंगे। Okay, I can say these are those people who are not Christian. और मैं समझता हूँ कि शायद ये वो लोग हैं जो क्रिश्चियन नहीं होंगे। But among Christian also there are some people who are doing in their own way to serve God. लेकिन अगर कोई क्रिश्चियन नहीं भी है और गैर मजहब के हैं, तो उनमें से भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने खुदा को सर्व करते हैं, उसकी खिदमत करते हैं, पर अपने तरीकों से। Let me keep the word of God. मैं आपको बताता हूँ खुदा के कलाम में से। Let me follow the word of God. और वो ये कहते हैं कि चलो हम खुदा को कि जो खुदा ने हमें बताया हम उसको फॉलो करें। Let me practice the law of God. और फिर वो ये कहते हैं कि जो खुदा ने हमारे ऊपर हुक्म लागू किए हैं, जो हमें प्रैक्टिसेस दी हैं, हम उसको करें। I can keep the law of God. और फिर वो ये कहते हैं कि हाँ, हम लोग खुदा के लॉ को पे पूरा उतरेंगे। There are many church and many class of the church are teaching them, let them follow the law of God. और हम देखते हैं आज भी बहुत से ऐसे चर्चेज हैं जो कि आपको लॉ पर जो है शरीयत को के ऊपर जो तालीम देते हैं। And even among those who receive salvation, और यहाँ तक कि जिन्होंने निजात भी हासिल कर ली वो भी लॉ के पीछे पड़े हुए हैं। still follow their own thoughts. वो सिर्फ अपनी सोचों को फॉलो करते हैं। They don't want to deny their heart. They don't want to break their heart. They don't want to give themselves to God. और वो कभी भी अपने आप को डिनाई नहीं करते, अपने आप का इनकार नहीं करते, और बल्कि अपनी ही सोचों के मुताबिक जैसा उनको अच्छा लगता है, जैसा शरीयत उनको बयान करती है, वो उस तरह से उसको फॉलो करते हैं। I received salvation, so I can do what I want. और वो ये कहते हैं हाँ, अब हमने जो है वो रास्तबाजी हासिल कर लिया, अब हम निजात हासिल कर लिया, अब हम जो मर्जी करें। Maybe Sunday service only I attend the church. Otherwise, I just put myself in my business. No one need to care about this. It's my decision. और फिर हम ये भी सोचते हैं ठीक है, बस संडे सर्विस हमने अटेंड कर ली, बाकी दिनों में हम अपने काम करेंगे, ये हमारा अपना काम है, हमारी अपनी जिंदगी है, जैसे हम अपनी मर्जी से करें। Yet they are converted to Christian, meaning they become a man who can do the works of God. They do works of man and they follow the routine of the world. और यही वो ऐसे लोग होते हैं जो कि खुदा के कामों को इस तरह से अपनी मर्जी से करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, हम अपनी मर्जी से जो कुछ हमारा दिल करेगा हम करेंगे, और हम खुदा के कामों को नहीं, मतलब वो खुदा के कामों को करना भी चाहते हैं लेकिन उसके साथ साथ अपने काम भी करते हैं। All these classes of people are seem like so different, but it has no such big difference. हम देखते हैं बहुत सी इसमें फर्क भी है, लेकिन इतना ज्यादा इसमें कुछ फर्क भी नहीं है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। The one who doesn't believe in God, एक वो जो, अगर आप देखें तो डिफरेंस कैसे नहीं, एक वो जो खुदा पे भरोसा नहीं करते, the ones who just follow the God as they want, और एक वो जो सिर्फ और सिर्फ खुदा को फॉलो करते हैं जैसा खुदा चाहता है, the one who receives salvation but just living as they want. और एक वो जो निजात भी हासिल कर लेते हैं लेकिन उसके बावजूद भी अपनी मर्जी से काम करते हैं। By the heart, they are all same. लेकिन दिल से वो सब एक जैसे होते हैं। But we ourselves put difference. लेकिन हमें अपने आप को जो है एक उनसे मुनफरिद रखना है। But we ourselves feel that I'm okay. और हमें यही कहना है कि हाँ, हम सही हैं। I'm thinking that I can be blessed. और हमें ये सोचना है कि नहीं, हम सब ब्लेस्ड हैं, हमें खुदा ने बड़ी बरकतें दी हुई हैं। But though they receive salvation, still the challenge in their life and the problems in their life never stop.
बेशक उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स भी आए और कुछ भी, और वो ब्लेस भी होते हैं, तो अगर प्रॉब्लम्स आए भी तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होते हैं। Though they wish something, though they pray something, they cannot receive from God. और ऐसे लोग जो कि अब उनकी जिंदगी में मसले मसाइल होते हैं और वो खुदा पर भरोसा भी नहीं करते, वो खुदा, जब वो कोई चीज खुदा से कहते हैं तो उनकी दुआएं सुनी भी नहीं जाती हैं। And they do not know the reason why. और फिर उनको ये भी नहीं पता होता कि हो क्यों रहा है। It's of their heart, but they do not know the problem. हेलो। Hello? It's of their heart is the problem. Sister, can you hear me? Yeah, Pastor, actually some people are calling, so between when they are calling, it's the call is just somehow distract. Okay, now So you you need can you to, yeah. So you need to I know, separate. I think so I have to use another phone. Yeah, like you use the internet for only the service, huh? Me, I know Yes. what you're saying. So Yes. what I'm saying is they are the problem, but they are finding there's some another problem. और उनके यहाँ पे मसला ये आता है, उनके दिल में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उनके और भी दूसरे तरह से भी प्रॉब्लम आ रही होती हैं। Their heart is become like stone, so they cannot break their heart. They try to follow, to listen the word, but they just pursue how they want. ऐसे लोगों के दिल जो होते हैं वो पत्थरों की तरह होते हैं, क्योंकि वो इतने स्ट्रॉन्ग हुए होते हैं कि वो अपने दिलों को ना तोड़ सकते हैं, ना उसको नरम कर सकते हैं कि खुदा की बातें उनके दिल के अंदर बैठ सकें, और वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो है उस पथरीली जो दिल होता है उस पर जो है वो उन बातों को लगाते रहते हैं जो उनके अंदर एंटर नहीं होती हैं। You know Queen Vashti? आप किंग वॉशली को जानते हैं? Yeah, she opened her own party. She did not listen to her king to present her beauty, but she has her own party. So she did not listen to king, and she this position, and she thrown to outside. और हम देखते हैं कि वो जो आई थिंक सो इट्स that is the story from Bible, which is the Esther coming behalf of her. ये हम उसकी स्टोरी देख रहे हैं कि जब आस्तर को मलका चुना गया था, तो उससे पहले जो उस बादशाह की बीवी थी वो अपनी मर्जियां करती थी, वो अपनी मर्जी से सब कुछ जो है वो करती थी, तो बादशाह ने उसको उस अपनी मलका होने से उसको बाहर निकाल दिया। ये उस तरह का हाल है कि वो एक रुतबे पर होने के बावजूद भी खुदा की मर्जी पर या बादशाह की मर्जी पर नहीं चलती थी। And also the king Saul, who was trying to kill David, he is not the position to serve himself and give the offering before God, but he just do whatever he wants. और हम देखते हैं इसी तरह साउल बादशाह को, जो कि दाऊद को मारना चाहता था, खुदा ने उसको एक ऐसा रुतबा दिया था कि उसको चाहिए था कि वो खुदा की मर्जी के मुताबिक चले, लेकिन फिर भी जहां उसको दिल होता था वो अपनी मर्जी करता था, जहां दिल नहीं होता था वो नहीं करता था। Yet he has a God, but he is not go and ask before God, but he is going before this demon possessed woman. और हम देखते हैं कि बेशक खुदा मौजूद था, पर तो भी उसने जब सैमुएल ने मरना था, जब वो मर गया था, तो उसने अपने लिए पूछने के लिए वो उस जादूगरनी के पास गया। उसको खुदा मौजूद था, खुदा से पूछना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, उस जादूगरनी का सहारा लिया कि मेरे लिए जो है वो सैमुएल को बुलाया जाए ताकि मैं उससे पूछूं। Even I cannot mention all these people in the Bible who follow their own ways, but they are all, what is the main problem is they have a different heart. They don't want to change their heart. They just follow their own heart. बाइबल में ऐसे बहुत से करैक्टर हैं जिनका मैं नाम तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुदा भी मौजूद था, खुदा उनसे बात भी करता था, लेकिन तो भी खुदा से पूछने की बजाय वो अपनी सोचों के मुताबिक अपने तरीके से काम करना चाहते थे। Spiritual life, it is not the word that I work.
जो रूहानी जिंदगी होती है वो ऐसी नहीं होती जैसे मैं अपनी मर्जी से जैसे मर्जी चाहूंगा अपनी रूहानी जिंदगी को गुजार लूंगा. Spiritual life, it is the word of God, it works itself. जो रूहानी जिंदगी होती है वो खुदा के काम के लिए होती है जो कि खुदा खुद करवाता है. For example, are we the one who is bigger than the word of God, or the word of God is bigger than us? जैसे मिसाल के तौर पे हम वो हैं जो खुदा के कलाम से बड़े हैं या खुदा का कलाम हमसे बड़ा है. We know word of God is bigger than us. हम सब जानते हैं कि खुदा का कलाम हम सबसे बड़ा है. But how do we make a decision ourselves? सॉरी. How do we make decision? लेकिन हम किस तरह से डिसीजन ले सकते हैं? According to the word of God, क्या खुदा के कलाम के वसीला से, or do we ask servant of God? या हम खुदा के बंदों से पूछें जो खुदा के खादिम होते हैं, Or we just follow our own ways? या हम अपने ही तरीकों से कि मतलब हम अपनी मर्जी के मुताबिक सोचेंगे? You know, it is just like the width of, I mean, the difference of just one page, one small page. हम देखते हैं कि यहाँ एक जरा सा एक छोटा सा फर्क है. जैसे एक जो किताब का एक वर्का होता है उसमें एक अगर जरा सा आप फर्क देखें इतना से ही बस फर्क है. It seems like it's just nothing. ये ऐसे जैसे है तो कुछ नहीं है. But it's not nothing. बट ये इसको हम कहेंगे कि कुछ नहीं है. It's everything. लेकिन ये सब कुछ है. Why is it? Because it's about life. ये क्यों है? क्योंकि ये जिंदगी के बारे में है. You cannot play with your life. आप अपनी जिंदगी से नहीं खेल सकते. You cannot just play while you are driving. आप ड्राइविंग के साथ खेल नहीं सकते. If you're driving, you need to put your hands on the handle and you need to focus in front. अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको पहले उस स्टीयरिंग को पकड़ने की जरूरत है ताकि आप उस हैंडल को पकड़कर आप ड्राइव कर सकें. Let's say spiritual life is God is handling and God is driving, but you cannot just push God and you cannot drive yourself. ये ऐसा है कि खुदा जो है वो हमारे स्टीयरिंग को उसने पकड़ के रखा हुआ है और वो चलाना चाह रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि खुदा को पीछे करें, खुदा से कहें, उसको जोर लगाएं कि खुदा तू स्पीड को ज्यादा बढ़ा दे या कम कर दे. ये ऐसा नहीं है. That's what we call spiritual arrogance. और हम इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल एरोगेंट. Mostly our brothers and sisters has an error in this way. और हमारे बहुत से बहन भाइयों के अंदर ऐसे मसले मसाइल हैं. I don't know because they are spiritually young or they do not really know or what, but they do not care in deep way. मैं ये नहीं समझ, मुझे नहीं पता कि ये इसलिए कि वो रूहानी तौर पर अभी बस उनका स्टार्ट है, उनको ज्यादा समझ नहीं है या क्या है, लेकिन ऐसा होता है और ये सही नहीं है. You know, I believe how we need to prepare our heart before God is very important. और मेरा ईमान है कि कैसे हम अपने दिल को प्रिपेयर कर सकते हैं खुदा के लिए. ये बहुत जरूरी है, हमें अपने आप को पहले प्रिपेयर करना है खुदा के सामने. I don't know clearly what is going on because people do not care in detail in their heart. क्योंकि शायद लोग जो हैं वो प्रिपेयर नहीं है अपने दिलों में. अभी तक उनको नहीं समझ आ रही कि वो किस तरह वो किस जगह पे खड़े हैं. We need to have a clear line in God. और मैं समझता हूँ कि खुदा के साथ चलने के लिए हमें एक बड़ी क्लियर लाइन में चलना चाहिए कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, यही हमारा रास्ता है, या हम डामाडोल हो रहे हैं. Because it is the spiritual life. क्योंकि यही एक रूहानी जिंदगी है. And this is your life. और ये आपकी जिंदगी है. People, they don't make a clear line in their heart. लोगों को खुदा के साथ चलने के लिए अपने दिल में क्लियर लाइन को फॉलो करना पड़ेगा. Between them and God.
जो कि आप लोगों के दरमियान और खुदा के दरमियान में होनी चाहिए, between them and church, जो कि आप लोगों के दरमियान और चर्च के दरमियान होनी चाहिए, between themselves and servant of God. जो आपके दरमियान और खुदा के खादम के दरमियान होनी चाहिए. Why church is there for us? यहाँ हम देखते हैं कि खुदा ने ये हमारे दरमियान चर्चेस क्यों मौजूद हैं. Church is a building, ये क्या ईमान के लिए है? or church is a place? चर्चेस Is it place? क्या ये सिर्फ एक जगह है? No, it is in our heart where God and Jesus is dwell. और ये ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक रास्ता है जहाँ पे हम आते हैं खुदा और उसके बेटे की हजूरी को महसूस करने के लिए. I myself as a church and you yourself as a church. मैं अपने आप को भी एक कलीसिया के तौर पर और आप अपने आप को भी कलीसिया के तौर पर ही देखें. And who is our head is Jesus Christ. और लेकिन हमारा सर कौन है? हमारा सर, कलीसिया का सर जो है वो मसीह है. And this service is for you. और ये जो हम इबादत कर रहे हैं ये आप लोगों के लिए कर रहे हैं. Who is joining the works of God is for their spiritual life. आप जो भी इसको आप में से जो लोग भी इस इबादत को ज्वाइन कर रहे हैं वो अपनी रूहानी तरक्की के लिए कर रहे हैं. You know, God is working according to the word of God. खुदा जो है वो अपने कलाम के मुताबिक ही काम करता है. And the word of God is working itself. और खुदा का कलाम खुदा जो है अपना काम खुद करता है. Now, what is important is, are we ready to receive word of God in our hearts? तो अब यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है? क्या हम लोग सब रेडी हैं खुदा के कलाम को, खुदा के काम को करने के लिए? Am I ready to receive his word in my heart? और अब आपको सोचने की जरूरत है, क्या आप रेडी हैं खुदावन के कलाम को सुनने के लिए और उसको रिसीव करने के लिए? And the word of God is working in my life as it is? और आप सोचें कि क्या खुदा का वाकई ये कलाम मेरी जिंदगी में काम कर रहा है? Or am I living not according, am I living as just I want? और या आप ये सोच रहे हैं या आप ये सोचें कि क्या जैसे मैं हूं बस ऐसे ही रहूं यही बेहतर है? Am I living with the word of God? और ये सोचें कि क्या मैं वाकई खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा हूं? What is in my heart? हमारे दिल में क्या चल रहा है? Do I forsake my thought and receive the word of God in my heart? क्या हम अपनी सोचों को एक तरफ करके खुदा के कलाम को समझ सकते हैं या उस पर भरोसा कर सकते हैं? How many I receive word of God in my heart? कितना मैं खुदा के कलाम को मैं रिसीव कर रहा हूं या कर रही हूं? Yet you are not listening to the word of God, then how can you have a faith in your heart? अगर आप खुदा के कलाम को ही नहीं सुनेंगे तो आपके अंदर ईमान या कैसे फेथ आएगा? Yet you are full of your own thoughts, yet you are full of your own plan. How can God use you in his work? बेशक आपकी जिंदगी में कुछ मकसद हैं, कुछ प्लान्स हैं, सब चीजें हैं, लेकिन कैसे खुदा आपकी जिंदगी में आके उस काम को करेगा जिसको उसने करना है आपके लिए? And now we are expecting his blessing. लेकिन उसके बावजूद हम क्या उम्मीद करते हैं कि खुदा हमें बरकत दे, जबकि हम ना उसके मुताबिक क्यों हैं? Yes, it's true that his love is unconditional. I mean, it's not in condition, and he loves condition, but we have our own thinking and we have our own plan. उसका प्यार जो है वो लाजवाल है, उसके प्यार में कोई शर्तें नहीं है, लेकिन फिर भी उसके कुछ अपने प्लान्स हैं जो वो हमारी जिंदगी में पूरे करना चाहता है. Can we really be blessed? और फिर वो हमें ब्लेस करेगा. Not in the humanistic way, but we are using God as we want. Can it be really possible in our life to use God as a tool? तो आपको क्या लगता है कि क्या आप खुदा को अपना ऐसा जो है टूरिस्ट बनाएंगे, जो आप एक गाइड, जो टूरिस्ट में आप जब जाते हैं तो आपने देखा होगा एक बंदा आपको गाइड करता है, तो क्या आप उसको इस तरह से समझते हैं कि बस वो आपके लिए एक वक्ती तौर पर है, वो आपको गाइड करे कि क्या करना है क्या नहीं करना और वो ऐसे आप उसको यूज करें?
He is और mighty God. वो हमारा खुदा है, वो हमारा जिंदा खुदा है। वो आपका कोई गाइडर नहीं है जो आपको लेके चलता रहेगा और आप उसको चिल्लाते रहेंगे। He is the most high. वो सबसे आला है, वो सबसे ऊंचे दर्जे पर है। And we are the one who is serving him. लेकिन हम वो लोग हैं जिसको खुदा को सर्व करना चाहिए, जिसको खुदा के लिए काम करने चाहिए। Serving him and using him is totally different. खुदा की खिदमत करना और उसको इस्तेमाल करना, ये दोनों बहुत फर्क चीजें हैं। Position of your heart is so different. और उसमें जो दिल की जो हमारी हालत होती है वो फर्क है। If you serve God, you will be in the lowly heart and lowly place. अगर आप खुदा को की खिदमत करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को आजिज करना पड़ेगा, अपने आप को सबसे। So what I'm saying is we have clear line as the spiritual life, but we are not keeping the line in our life. इसमें फर्क ये है कि हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हमने क्या करना है, अपनी लाइफ को लेकर कैसे चलना है, खुदा के काम को कैसे करना है। ये आपकी जिंदगी में ये चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए। Spiritual life is very clear. आपकी जो रूहानी जिंदगी है वो बिल्कुल शफाफ होनी चाहिए, एक शीशे की तरह क्लियर होनी चाहिए। And it's very easy. और ये बड़ी आसान भी है। And it's full of grace. और ये खुदा के फज़ल से भरी पड़ी। नुक्स हो, जो रूहानी तौर का नुक्स होता है कि रूहानी तौर पर आप कुछ नुक्स में भी चल रहे हो, आपके अंदर एक अपना एक तरीकाकार हो, अपना तरीकेकार से आप नहीं चल सकते। They are not arrogant. Oh, you see, I have a money. You see, I have like this. Though they don't boast outside like this. बेशक अगर चले आपके अंदर कोई ऐसा एरोगेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता है मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं खुदा के काम को और करूं। But spiritually, they overtrust themselves. लेकिन इसका मतलब है कि वो सिर्फ अपनी ही मर्जी के मुताबिक या अपने लिए सब कुछ करना चाहते हैं। Oh, I'm okay. It's okay. I'm praying. It's okay. I'm reading. It's okay. I'm doing my own way. That's I'm serving God. But you know, you're in wrong way. और ठीक कर रहे हैं, हम अपना काम भी कर रहे हैं, हम खुदा के काम भी कर रहे हैं, हम दुआ भी कर रहे हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। It's like those people who are looking into the Bethesda still. ये ऐसा है जैसे बैते हस्दा पे वो बीमार जो कि उस हौस के ऊपर हमेशा नजर रख के बैठे हुए थे और वो उम्मीद करते थे उस बैते हस्दा से। Yet God has sent Jesus Christ to save them from their sin and all disease. हम देखते हैं कि खुदा ने अपने बेटे को भेज दिया कि हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले, हमारी बीमारियों से हमें निजात दे। They still do not know Jesus, and Jesus even doesn't know them. और वो उनको स्टिल ऐसे ही लगता है कि वो नहीं जानते या यीशु उनको नहीं जानता। That's how we are doing. हम ऐसा ही कर रहे हैं। Today the word it says in Matthew chapter 11 verse 28. और हम देखते हैं कि आज जो खुदा के कलाम में लिखा है मत्ती 11 बाब उसकी 28। You read very, very carefully in your heart. आप अपने दिल से इसको, मैं चाहता हूं कि बड़े क्लियरली इसको समझें। Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। Aren't you not labor yourself? Aren't you not heavy laden yourself? Sorry? Aren't you not labor yourself? Aren't you not heavy laden yourself? और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोता हूं।
In other words, are you not struggling yourself? इसका मतलब ये है कि आप अपने लिए कोई मेहनत मत करें। Take my yoke upon you and learn from me. और वो कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। Are you taking his yoke? तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने उसके जुए को उठाया है, जो उसका Or जुआ are है, you or are you carrying your own thing? या फिर आप अपनी ही सोचों को, अपने ही कामों को अपने कंधों पर उठा के बैठे हैं? Are you not struggling with your own things? क्या आज भी आप अपने कामों के लिए, अपनी चीजों के लिए मेहनत, Let me say your own ministry, मैं जैसे कि कहता हूँ कि आप अपनी मिनिस्ट्री कर रहे हैं खुद की, and your business, या आप जो अपना काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, your family issues. या आपकी जो घर के मसाइल हैं, For example, children issues. मिसाल के तौर पे बच्चों के मसले हैं। All people, they are taking care of all these themselves, like heavy आज laden. और मैं देखता हूँ कि बहुत आज सारे लोग, सब लोग ऐसा ही कर रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी में इन सब कामों को कर रहे हैं। And God says, for I am gentle and lowly in heart. Jesus said, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. और हम देखते हैं कि लिखा है, क्योंकि वो यीशु कहता है कि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन हूँ, तो तुम्हारी जाने How आराम can पाएंगे। rest ourselves? हम अपनी मर्जी से या अपने तरीकों से कैसे आराम कर सकते हैं? Because he is working himself with the word of God. क्योंकि वो तो खुद से काम कर रहा है, लेकिन खुदा जो यीशु जो है वो खुदा के कलाम के ऊपर रहकर जो है वो, क्योंकि खुद कलाम है उसमें रहकर वो काम कर रहा है। Many people are confused between religion and spiritual life. और आज भी बहुत से लोग जो है वो कंफ्यूज हैं, किसमें? मजहब के अंदर और रूहानी जिंदगी के अंदर। Religion is what I do. मजहब क्या है? मजहब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, What I do in the Bible is the law. और जो हम कर रहे हैं वो बाइबल के मुताबिक जो हम कर रहे होते हैं वो लॉ को कहा जाता है। But the spiritual life is what God is doing. इसका मतलब ये है कि जो रूहानी जिंदगी है वो ये है कि खुदा हमारे लिए क्या कर रहा है, लेकिन And जो it's the जिस्मानी जिंदगी है, जो मजहब है, वो ये है कि हम खुदा के लिए क्या कर रहे हैं। and it's a grace. और ये जो रूहानी जिंदगी है ये सब फजल के मुताबिक होती है। When you read Genesis chapter 1, जब आप पैदाइश उसका पहला बाब पढ़ते हैं, God create everything खुदा ने सब कुछ बनाया। by his word. खुदा ने किस तरह बनाया? अल्फाजों से। If you read in Bible in English, you will find, and God said, and God said, and God said, and God said. अगर आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ें तो उसमें साफ साफ लिखा है कि खुदा ने कहा, खुदा ने कहा, खुदा ने कहा। What God said, accomplished. और जो खुदा ने कहा वो पूरा हुआ। Because the word of God, it has the power. क्योंकि जो खुदा का कलाम है उसमें कुव्वत पाई जाती है। When the word of God enter in your heart, ऐसे ही जब खुदा का कलाम हमारे अंदर एंटर होता है and it just work. तो वो काम करता है। For example, when like in the biological term, बायोलॉजिकल टर्म में हम देखते हैं when there is the egg, कि अगर हम अंडे को देखें, when the sperm enters to the egg, और जो एग होता है, जब स्पर्म उसके साथ मिलता है, अगर हम बायोलॉजिकल तौर पे देखें कि बच्चा कैसे बनता है, and it becomes the life. तो वो दोनों चीजें मिलकर एक जिंदगी को जन्म देती हैं। It divides 2, 4, 8, 16, 32, 48, like that way. और यही जो होता है ये
डिवाइड हो जाता है, तकसीम हो जाता है 2 से 4, 8, 16, 24, 32 इस तरह करके। What woman has done, what man has done. अब हम यहाँ देखते हैं कि औरत और मर्द ने क्या किया। Not really much, but when the egg and when this sperm meets together and it हम becomes the देखते life. हैं कि कुछ खास नहीं, लेकिन जैसे ही ये दोनों चीजें मिलती हैं, वो जो स्पर्म और एग होता है, तो काम शुरू होता है। Like that is the most easiest example when our heart receive the word of God and it works in your life. और ऐसे ही ये आसान सी एग्जांपल है कि जब हमारा दिल खुदा के कलाम के साथ मिल जाता है, तो हमारी जिंदगी में काम होना शुरू हो जाता है, और वो ऑटोमेटिकली होता है, आपकी अपनी एफर्ट से नहीं होता। हालेलुया। But in your heart there is a worry of your life, worry of your job, worry your family, worry of your children. Then how the word of God enter your heart? लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर तो पहले से ही इतनी परेशानियां, मुसीबतें और आपके मसले मसाइल पड़े होते हैं, तो खुदा का कलाम एंटर कैसे होना है आपकी जिंदगी? How can you rest in your heart? आप उसको अपनी जिंदगी, अपने दिल में कैसे आराम देना चाहेंगे? Yeah, you're trying to do something by yourself, but does it really work? सॉरी? Yeah, you're trying to do something with that heart, but can it really works in your life? बेशक आप ऐसे दिल के साथ खुदा के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या ऐसे दिल के साथ आकर वो दिल काम करेगा? Word is pushing you. You must work hard. You must do this way. You must follow this, and you must try to do that way. लेकिन आपके दिल में तो पहले से इतनी चीजें होती हैं कि आपका दिल ही आपको बता रहा होता है कि पहले ये काम कर ले, पहले ऐसे बन जा, पहले यूं कर ले, बाद में इस चीज को देखना। But there is no peace and happy in your heart. लेकिन आपकी जिंदगी में कोई इत्मीनान और कोई खुशी नहीं होती है। Finally, you exhausted. Finally, you are tired. Finally, you are worried. Finally, you are heavy laden. और हम देखते हैं कि आखिरकार क्या होता है कि आप लोग थके हुए होते हैं, आप हार चुके होते हैं, आपकी जिंदगी में कोई अब उम्मीद नहीं रहती। Mostly, you are spending all your time in that way. और बहुत से वक्तों में आप ऐसे ही जिंदगी को गुजारते हैं, ज्यादा वक्त आपका ऐसे ही गुजरता है। Brothers are busy to do their work. Sisters are busy to do their housework. और मैं देखता हूँ कि बहुत से बहन भाई कहते हैं हम अपना काम कर रहे हैं, बहनें कहती हैं हम अपने घर के कामों में लगी हुई हैं। तो इसी तरह से आप लोग ऐसे ही बिजी रहते हैं। You see who is over, or I mean, हम देखते हैं कि कौन है जो आपकी जिंदगी पर काबू पा सकता है, वो खुदा है। who makes your family be safe? कौन है जो आपकी फैमिलियों को जो है वो महफूज रखता है? Is it Uganda government? क्या वो युगांडा की गवर्नमेंट जो है वो महफूज रखती है, या आप लोगों की वहां की गवर्नमेंट महफूज रखती है? Is it Pakistan government? क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो महफूज रखती है? Is it Korean government? क्या कोरिया की गवर्नमेंट जो है वो आपकी फैमिलियों को हिफाजत कर रही है? Yes, I think they are trying what they can do the best, but they cannot keep our family very safe. बेशक हम देखते हैं कि वो हमारी फैमिलियों के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करती है, लेकिन ये हमारा फेथ नहीं है, क्योंकि वो जो करना चाहिए वो नहीं वो कर पाती है। Who can keep our family safe? कौन है जो हमारे खानदान की हिफाजत करता है? Who can open the better future for our family? कौन है जो हमारी फैमिली के लिए एक अच्छे अपॉर्चुनिटी को जो है अच्छी उम्मीदों को खोलता है? Who can open your blessing? कौन है जो हमारी ऊपर अपनी बरकतों को खोलता है? Don't forget this. Don't forget this. आप इसको भूले मत। Don't forget the answer. आप इस जवाब को भी मत भूले हैं। Though you struggle and struggle and struggle for yourselves,
बेशक आप अपने लिए मेहनतें कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी जिंदगियों के लिए, you must to know that you have no solution. और यकीनन आपके पास कोई इसका हल नहीं है। Who is solution is God. उसका हल कौन है? वो है हमारा खुदा। What can change your life is the word of God. और जो चीज हमारे अंदर तब्दीली को लाती है वो है खुदा का कलाम। Without word of God, nothing can be changed. क्योंकि खुदा के कलाम के बगैर कोई भी चीज तब्दील नहीं हो सकती। But when you just receive the word in your heart, जैसे आप खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेते हैं, immediately you change. आप उसी वक्त फौरन तब्दील हो जाते हैं। ये सब कुछ खुदा के कलाम की वजह से होता है। And verse 30 it says, "For my yoke is easy and my burden is light." और जो तीसरी आयत है मत्ती 11 की, उसमें लिखा है क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। Let us learn from Jesus Christ. सॉरी, Let us learn from Jesus Christ. हम खुदावंद यीशु मसीह से सीखते हैं, He did not struggle for his life. क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा स्ट्रगल तो किया ही नहीं था। He did not struggle for his family. उसने ना अपनी कोई फैमिली के लिए कुछ स्ट्रगल किया। He did not struggle for his own business. उसने कोई अपने बिजनेस करने के लिए भी स्ट्रगल नहीं किया। During when he was in this world, he was only thinking about will of God. और जब वो इस दुनिया में रहा तो उसने एक ही चीज को सोचा, और वो था खुदा की मर्जी। Pastor, how can I not work? How can I not think of my business? तो हम ये कहेंगे पास्टर से कि फिर कैसे हम अपने काम, अगर हम यही करते रहेंगे तो हम अपने घर को कैसे चलाएंगे, अपने कारोबार को कैसे करेंगे। But what if you think only the will of God and only about gospel? Then God cannot help you. मैं ये कहता हूँ कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ खुदा की मर्जी को देखें, खुदा के कलाम की तरफ मुतवज्जह करें, तो क्या खुदा आपको बरकत नहीं देगा? खुदा आपकी काम नहीं करेगा? Are you more powerful than God? क्या आप खुदा से जो है वो बड़े हैं? Do you manage well than God? सॉरी, Do you manage well than God? क्या आप खुदा से ज्यादा बेहतर मैनेज कर सकते हैं? No, it's God who can manage all things in a tremendous way. लेकिन हम देखते हैं कि ये सिर्फ खुदा ही है जो बड़े ही अजीब और गरीब तरीके से अपने कामों को पूरा करता है, आपकी जिंदगियों में काम करता है। Who has solution? किसके पास इन चीजों का हल है? It's God. वो सिर्फ और सिर्फ खुदा है। It's not you. आप खुद नहीं कर सकते। Let us open First Samuel हम खोलेंगे पहला सैमुएल chapter 14, उसका 14 बाब 6 and 7. उसकी 6 और 7 आयत। It says, Then Jonathan said to the young man who bore his armor, "Come, let us go over to the garrison of these uncircumcised. It may be that the Lord will work for us. For nothing restrains the Lord from saving by many or by few." Is it first Samuel? Yeah, 1 Samuel chapter 14 verse 6. पहला सैमुएल उसका 14 बाब और उसकी 6 और 7 आयत को हम देखेंगे। लिखा है, सो यूनतन ने उस जवान से जो उसका सला बरदार था कहा, आ हम उधर उन नामख्तूनों की चौकी को चले। मुमकिन है कि खुदावन हमारा काम बना दे, क्योंकि खुदावन के लिए बहुतों या थोड़ों के जरिया से बचाने की कैद नहीं। उसके सलाह बरदार ने उससे कहा, जो कुछ तेरे दिल में है सो कर और उधर चल, मैं तो तेरी मर्जी के मुताबिक तेरे साथ हूँ। आमीन।
So his armor bearer said to him, do all that is in your heart. Go then, here I am with you according to your heart. और हम देखते हैं कि जो उसका सलाह बरदार होता है, जो उसके साथ उसका मदद करने वाला, तो वो उसको कहता है कि जो तेरी मर्जी है तू कर, मैं तो तेरे हुक्म को मानने वाला इंसान हूं। So when Jonathan was saying, come, let us go over to the garrison of this uncircumcised, it may be that the Lord will work for us, for nothing restrained the Lord from saving by many or by few. When he was saying and made this heart, his armor bearer said to him, do all that is in your heart. Go then, here I am with you according to your heart. और हम देखते हैं कि यूनातन कहता है कि आओ हम ये सब काम करते हैं, कि हम वो उस जवान से कहता है, उस सलाहबरदार से कहता है कि उधर उन नामकूनों की चौकी को चलो, हम वहां पे उधर चलते हैं, कि हो सकता है कि खुदा हमारे लिए सारा काम कर दे, क्योंकि चाहे थोड़े हों चाहे ज्यादा हों, खुदा बचाने वाला है। और बचाने वो कहता है ये बहुतों या थोड़ों के जरिए से बचाने की कैद नहीं, हमें खुदा बचा सकता है। तो वहां पे सलाह बरदार क्या कहता है कि जो तेरी मर्जी है, जैसा तू चाहेगा मैं वैसे करूंगा, मैं तो तेरे हुक्म को मानूंगा। When Jonathan received the heart from God, जब यूनातन को खुदा की तरफ से ये बात मिलती है, his armor bearer also agree with that heart. तो हम देखते हैं कि यहाँ उसका जो सलाह बरदार होता है वो भी उसके साथ मुत्तफिक होता है उस बात के ऊपर। And now he, Jonathan, and his armor bearer are seeing the works of God. और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों मिलके, यूनातन और वो जो सलाह बरदार है, वो दोनों मिलके खुदा के काम को करते हैं। God was using these two persons खुदा जो है उन दो लोगों को चुनता है to kill these old people there. क्योंकि वो खुदा चाहता था कि वो उन तमाम लोगों को मारे, इसलिए उसने यूनातन से कहा। And this is how God showed us when we become one heart with God. और हम देखते हैं कि यहाँ दिखता है साफ साफ कि कैसे खुदा ने जब वो उनका दिल खुदा के साथ मुत्तफिक हुआ, तो खुदा ने उनके साथ मिलकर काम किया और वो दो लोग उन सब पर हावी हुए। Yes, armor bearer can be fear, armor bearer can be scared, but he just followed the heart of Jonathan. बेशक यूनातन जो सलाह बरदार था वो डरा भी हुआ होगा, या उसके दिल में कुछ बात भी आएगी, लेकिन उसका काम क्या था कि वो यूनातन की बात को अहमियत दे और उसको फॉलो करे। And God was working amazingly. और हम देखते हैं कि खुदा ने बड़े अजीबोगरीब तरीके से काम किया। I think this is how God made us to see how Pastor Park could deliver the word of God to the Speaker of the Parliament of Uganda. और मैं ये सोचता हूँ कि कैसे इसी तरह कैसे खुदा ने पास्टर पाक के दिल में ये बात डाली, और उसने जो गवर्नमेंट यहाँ पे युगांडा का पार्लियामेंट था, उससे स्पीकर था, उससे बात की और बगैर डर और खौफ से। Pastor Kim said, let's push this meeting, let's do this meeting, let us have this meeting, Speaker and Pastor Park. Yet the appointment was not that so much clear. हम देखते हैं कि अपॉइंटमेंट इतनी क्लियर नहीं थी, लेकिन जो गुड न्यूज मिशन के पास्टर पार्क हैं, जो कि फाउंडर हैं, जब उन्होंने ये बात कही उन बुजुर्ग ने कि नहीं, मुझे आपको जो है उस स्पीकर से, गवर्नमेंट का जो पार्लियामेंट का स्पीकर है, उससे इस मीटिंग को पुश करना है, जबकि अभी तक हमारा कोई मीटिंग का क्लियर लाइन नहीं मिली थी, लेकिन तो भी उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमें पुश करना है। Yes, in my heart, I have many thinking, many my way, many my worries, but I say, yes, let's see. Yes, let it be as it is, but I see how God worked this time. और मेरे भी दिल में ये बातें थी उस वक्त, मैं भी ये सोच रहा था कि ऐसे कैसे होगा, कुछ प्रिपेयर नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा हाँ नहीं, ऐसा होगा, मुझे उस बात को फॉलो करना है जो मुझे मेरे पास्टर पाक ने बोला है कि हमको इस मीटिंग को करवाना है और मुझे करवाना है। और मैं देखता हूँ कि वाकई कैसे खुदा ने वहां काम किया, और वाकई जिसको मिलना मुश्किल था वहां पर उनकी मीटिंग हुई। So when there is the voice of church is, you may not say, no, I have this and that. You not say that.
इसका मतलब ये कि जब आपके पास चर्च की जो है वॉइस होती है, आवाज होती है, चर्च कहता है ऐसे करना, लेकिन आप नहीं कह सकते कि नहीं नहीं ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, अभी तो हम बड़े बिजी हैं, अभी तो हमारे पास ये काम है, ऐसा है वैसा है। If you say yes in your heart, you will see many works of God. You will see the और blessing in your life. अगर आप अपने दिल में ये कहेंगे कि हाँ हम खुदा के लिए काम करेंगे, खुदा जो चाहता है हम वो करेंगे, तो आप देखेंगे किस तरह आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स आना शुरू हो जाती Yet you do not know how God will work amazingly, but why you say no, no, no? है। बेशक आप उसके काम को भी देखेंगे, खुदा किस तरह से आपकी जिंदगी में काम करता है, तो फिर क्यों आप अपनी जिंदगी में उस ना को लेकर आते हैं और कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा नहीं होगा, यूं होगा। Do you want to be rich? अगर आप अमीर होना चाहते हैं You live rich as before God. तो आप ऐसे जिंदगी गुजारें कि आप अमीर हैं खुदा के सामने। Do you give thanks offering to God? जब आप खुदा के आगे उसके हदिये को देते हैं, Do you give tithe before God? मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप जो है दाय यकी को देते हैं उसके आगे? I think our brothers and sisters some are very shy to give before God. और मुझे लगता है कि हमारे बहन भाई जो हैं वो अभी बच्चे हैं इस चीज के अंदर, खुदा को देने के आगे। All the things that you use in God, He will give you 10 times. हालांकि आप जो कुछ भी उसको देते हैं, खुदा 10 गुना बढ़ाकर आपको देता है। If church become rich, you become more rich. क्योंकि अगर जो चर्च है वो अमीर होगा, बढ़ेगा, तो आप भी बढ़ेंगे। Oh no, Pastor, you don't know. It's better I keep my money myself. You will say like that way. हो सकता है आप ऐसा कहते हो, नहीं नहीं पास्टर हमें इन पैसों को इस्तेमाल करना है, हमें इस्तेमाल करने दें। हो सकता है आपका तरीकाकार ये हो। No, it's not. ऐसा नहीं है, It's true. ये सच है। What I'm saying is life witness which I've seen. मैं आपसे वही कह रहा हूँ जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। Who really give offering before God, they receive from God. और हम देखते हैं कि जो वाकई ही खुदा के लिए देते हैं, वो वाकई खुदा की ब्लेसिंग को भी पाते हैं। Who become salty, who become small hand before God, they become salty and small hand in their life. और मैं देखता हूँ कि जो वाकई ही अपनी जिंदगी में खुदा के इस नमक को नहीं रखते या खुदा को नहीं देते, खुदा भी उनके लिए फिर दरवाजे नहीं खोलता। Yet you are giving him, yet you are supporting him. Why he cannot support you? क्योंकि अगर आप वाकई खुदा के लिए कर रहे हैं तो खुदा क्यों नहीं आपके लिए करेगा? Please be wise. आपको जो है इसमें अक्लमंद बनने की जरूरत है। It's not me. I take all this offering away. ये मैं नहीं हूं कि मैं आप जो हदिये देते हैं ये मैं लेके जाता हूँ, I do not receive nothing from the church. क्योंकि मैं कुछ भी चर्च से रिसीव नहीं करता हूँ। I receive before God and I live before God. क्योंकि मैं खुदा के लिए अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ, तो मैं खुदा से ही जो है पाता हूँ। And there is the thing that I need, but I receive from God. बेशक कुछ चीजें जो मुझे जरूरत होती है वो मैं खुदा के आगे रखता हूँ, खुदा ही मुझे मुहैया करता है। I don't know why our brothers and sisters are shy to serve God. मुझे समझ नहीं आती कि हमारे बहन भाई खुदा के आगे अपनी जिंदगी को वर्क क्यों नहीं करते हैं और क्यों शर्माते हैं। Then how can God makes you rich and how can God makes you live well? तो कैसे खुदा आपको अमीर बनाएगा, कैसे खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा? There is a reason why you become head aching. Many things are, blocking your ways. Many things are problem in your life. इसी वजह से बहुत सी चीजों में आपकी जिंदगी में रुकावट रहती है, क्योंकि आप खुदा को के लिए अपने आप को सर्व नहीं करते हैं, उसकी खिदमत नहीं करते, इसलिए आपकी भी जिंदगी ब्लॉक हो जाती है। Today word says, my yoke is easy and light. और आज हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है कि मेरा जुआ मुलायम और हल्का है। But brothers and sisters has no heart to serve Jesus Christ. लेकिन हम देखते हैं कि हमारे बहन भाइयों में कोई ऐसा दिल ही नहीं पाया जाता कि वो खुदा की खिदमत को कर सकते हैं। Then how can God makes you live well? तो फिर कैसे खुदा आपकी जिंदगी में काम कर सकता है?
That's why you are struggling yourself. इसी वजह से आप अपनी जिंदगी में आज मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। I have this issue, I have this issue. और आप यही कहते हैं कि हमारी लाइफ में ये मसले हैं, ये मसाइल हैं, ये परेशानियां हैं। All these things will come upon you as a blessing when you serve God. अगर हम खुदावन को की खिदमत करेंगे, काम करेंगे, तो खुदा हमें ब्लेसिंग्स देगा। You cannot keep your marriage well. क्योंकि आप खुद से मैनेज नहीं कर सकते। You cannot keep your health very well. आप अपने आप को सेहतयाब नहीं बना सकते खुद से। You cannot protect yourself. आप अपने आप को बचा नहीं सकते। God is the one who can make you healthy. God is one who can protect you. God is one who can provide for you. कि खुदा ही वाहिद वो है जो आपको बचा सकता है, जो आपके काम पूरे कर सकता है, जो आपको शिफा दे सकता है। If you give before God 10, God gives you 100 and 1,000. अगर आप खुदा को 10वां हिस्सा देते हैं तो खुदा उसको बढ़ाकर उसको 100 और 100 से 1000 गुना बढ़ा देता है। And if you give before God 10,000, God gives you 100 or million. और अगर आप उसको 1000 देते हैं तो खुदा आपको उसमें मिलियंस और बिलियंस में लेके जाता है। And when you serve God, God serve you better way. अगर आप खुदा को सर्व करेंगे, उसकी खिदमत करेंगे, तो खुदा भी आपके लिए बेहतर तरीके और हल निकालेगा, काम करेगा आपके And लिए। when you participate in the works of God, there is the true joy and happiness in your heart. और ये बात हकीकत है कि जब आप खुदा की खिदमत करना शुरू कर देंगे, आप उसके काम करना शुरू कर देंगे, आपके दिल में एक अजीबोगरीब किस्म की खुशी होगी कि आप खुदा के काम कर रहे हैं। Me, with my eyes, I'm seeing the Speaker of Parliament of Uganda listening the word of God. मैंने अपनी आंखों से देखा कि जो युगांडा का पार्लियामेंट का स्पीकर था, उसने खुदा के कलाम को किस तरह से रिसीव किया। And during that time, और उस वक्त में in the morning, I was somehow feared. I was somehow can have a heart to prepare my laptop. और सुबह के टाइम में थोड़ा सा परेशान भी था, मैं जो है लैपटॉप में प्रिपेयर कर रहा था सब कुछ। I used my old laptop for 10 years. मैं अपने पुराने लैपटॉप को जो 10 साल पुराना है उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। That time it was second hand. It was used for 2 years. और जब मैंने लिया था तो ये सेकंड हैंड था जो कि 2 साल चल चुका था। And I bought around I bought like $300. और मैंने इसको जब इस्तेमाल किया तो वो तकरीबन $300 या पाकिस्तानी अगर आप कहें तो 45,000 का था। I remember because it was my first and second allowance from the church. और मुझे याद है कि ये मेरा पहला या दूसरा अलाउंस था जो मुझे चर्च से मिला था। Because our pastors in Good News Mission, they receive allowance from the church very small. क्योंकि जो हमारे गुड न्यूज मिशन के जो पास्टर्स हैं वो गुड न्यूज मिशन से बहुत थोड़ा सा अलाउंस पाते हैं, उनको बहुत थोड़ा मिलता है। In Korea, as I was co-pastor, I received $150. हालांकि मैं Per को month. पास्टर सॉरी Per month, I received $150. मैं कोरिया से हूँ और मैं कोरिया से जो पास्टर हूँ, लेकिन मुझे जो है वो कोरिया से जो आता है वो सिर्फ $150 आता है, जो कि बहुत छोटी सी अमाउंट है। If I pay my communication fee, there is nothing. अगर मैं अपनी कम्युनिकेशन की फीस ही भरूं तो वो उसके आगे ये $150 कुछ भी नहीं है। I received everything by prayer. लेकिन मैं सब कुछ ईमान से सब कुछ पाता हूँ। When I went to training in Gangnam Church, I received nothing from the church. मैंने जब चर्च से ट्रेनिंग ली तो मैंने कुछ भी मुझे नहीं मिला था चर्च से। Because I have no belong the church. क्योंकि But I'm in training. मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था जिससे मैं उस चर्च से बिलोंग करता, बल्कि मैं तो एक ट्रेनिंग के हिस्से में था। And now I'm in Uganda. I am now in Ntinda Church. और अब मैं चूंकि युगांडा में हूँ और नटिंडा चर्च का पास्टर हूँ। I think now it's officially 2 years. और हम देख रहे हैं कि 2 साल हो गए हैं हम ऑफिशियली इस चर्च को जो है वो मैं अटेंड कर रहा हूँ।
I live by myself. लेकिन मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजार रहा हूँ। Yeah, small fee from Korea, they support us in house renting, very small. जबकि वो हमारे हाउस रेंट के लिए भी बड़ी थोड़ी सी फीस को हमें देते हैं। But in my life living, लेकिन जैसे मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ, I receive blessing from God. ये सिर्फ और सिर्फ खुदा की ब्लेसिंग है जो वो मुझे देता है। हेलो, हेलो, आप लोग सब मुझे सुन रहे हैं? आप लोग सब सुन रहे हैं मुझे? Hello? Yes, Pastor, what happened? Just internet finished, so I changed. Okay. So, but me, in my heart, I'm very thankful. तो मैं खुदावन के का शुक्र अदा करता हूँ अपने दिल से, Because this time I bought new laptop, I prayed before God, and I bought by faith. और मैं ईमान से मैंने जो है मैंने दुआ की और मैंने एक नया लैपटॉप जो है वो खरीदा, और ये सब ईमान के वसीला से हुआ। Mostly this is COVID time. We are doing the works of God through this Zoom and meetings, so I bought new. क्योंकि आपको पता है ये कोविड का टाइम है, हम सब लोग जूम पे इसलिए मीटिंग करते हैं क्योंकि चर्चेस अलाउ नहीं है अभी, और इस वक्त मुझे इसकी बहुत सख्त जरूरत थी और ये मैंने खुदा से पाया। Believe. लेकिन मेरा ये ईमान था, If I use all these things before God, He always provide me and help me. क्योंकि मेरा ईमान था कि जब मैं ये सारा काम उसके लिए करूंगा, मैं उसके लिए ये सब चीजें जो है अपना काम करूंगा, ये जो लैपटॉप है इसको यूज करूंगा, तो वो जरूर मुझे मुहैया करेगा। So when we had a meeting with speaker, in case I was thinking I need this laptop, so I brought this laptop to speaker. तो मुझे ऐसे लगा था कि शायद हम स्पीकर से मिलने जा रहे हैं, तो ये जो लैपटॉप है ये वहां इस्तेमाल होगा, इसलिए मैंने इसको खरीदा। Pastor Kim has a laptop actually. पास्टर किम जो हमारे यहाँ के नटिंडा के सीनियर पास्टर है, उनके पास तो था लैपटॉप, And his laptop is very good all the time. He's working very well even. क्योंकि उनका लैपटॉप बहुत अच्छा है, हाई क्लास का है और वो बड़ा अच्छा काम करता है। But suddenly his laptop was not working at all. उस वक्त मैंने देखा कि अचानक से उनका जो लैपटॉप है वो काम नहीं कर रहा था। So we were looking for the laptop. Who has the laptop? Who has a laptop? और उस वक्त हम बड़े परेशान हो गए और हम लैपटॉप ढूंढने लगे कि किसके पास लैपटॉप है, किसके पास लैपटॉप है। But I had a laptop. और मुझे उस वक्त मुझे हुआ कि ये तो मेरे पास है लैपटॉप। Normally I'm not carrying this laptop actually, and Pastor Kim very know where. He knows very well. I'm not carrying the laptop. I'm not using laptop much. क्योंकि पास्टर किम को पता था कि मैं हर वक्त लैपटॉप अपने साथ लेके नहीं फिरता हूँ, और लेकिन उस वक्त मेरे पास ये लैपटॉप था। But this laptop, by grace of God, was used in the virtual meeting between Pastor Park and his speaker. As the first time. As the मैं first शुक्र करता time. हूँ कि ये पहली बार हुआ कि मेरा लैपटॉप जो है वो पास्टर पार्क और उनका जो वहाँ का स्पीकर था युगांडा का, उसके साथ ये पहली बार इस्तेमाल हुआ। In my heart, I was so thankful before God. और मैं बड़ा खुदा का शुक्र अदा कर रहा था इस बात के लिए। It's not that I prepared the way of this laptop. ये ऐसे नहीं था कि मैंने इस चीज को प्रिपेयर किया हुआ था। God used this laptop to preach gospel to the speaker of the parliament of Uganda. लेकिन ये ऐसा था कि खुदा ने पहले से ही लैपटॉप को जो है इस्तेमाल करना था, इसलिए उसने मुझे मुहैया किया, क्योंकि उसने उसको इस्तेमाल करना था पार्लियामेंट और पास्टर पाक की उस कन्वर्सेशन के लिए। Not only laptop, he wants to use my life to serve God in Uganda.
जबकि ये खाली लैपटॉप का काम नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि मेरी जिंदगी उसने युगांडा में इसलिए लेकर आया कि वो चाहता था कि मैं उसको सर्व करूं, उसके कामों को, उसके लोगों के लिए। Then he must provide me health. He must provide me what I need. He must provide me the house. He must provide me everything for me to serve God. तो ये इसलिए था क्योंकि अब अगर मैं उसके लिए चुना गया हूं तो वो ही है जो मेरे लिए सारे काम करेगा, मुझे घर मुहैया करेगा, जो मुझे हर फैसिलिटीज देगा, सब कुछ वो है। क्योंकि मैंने अगर उसके लिए इस्तेमाल होना है, मैंने उसके काम करना है, तो उसको मेरी फिक्र है, वो मेरे लिए सब कुछ करेगा। As he used me, he wants to meet many big people, then he must make my house bigger and good place and good things that I need. Then he provide me for his work. क्योंकि उसको पता था कि मैं बड़े बड़े लोगों से मिलूंगा, मेरा ताल्लुक उनके साथ होगा, मैं उधर जाके प्रीचिंग करूंगा, तो उसको पता था कि मुझे बड़ा घर भी चाहिए, मुझे अच्छी जगह चाहिए, तो खुदा ये सब कुछ मुझे मुहैया कर रहा है। Then I give my life for God. Then God used my life and I see the glory of God as if it is my life. तो इसका मतलब ये कि अगर मैं अपनी जिंदगी खुदा को देता हूँ तो मैं उसकी बरकतों को भी देख पाऊंगा कि वो मेरी जिंदगी में कैसे बड़े बड़े काम कर रहा है, क्योंकि ये तभी होगा जब आप अपनी जिंदगी खुदा को देंगे। That is the secret of Good News Mission, how become big church now. और ये जो गुड न्यूज मिशन चर्च है, इसका सीक्रेट है, इसका गहरा भेद है इसके अंदर, कि किस तरह से आप खुदा के लिए अपने काम को कर सकते हैं और खुदा आपको ब्लेस करता है। Brothers and sisters selflessly served God and served the church with all their heart. बहन भाइयों को, हम सब अजीजों को जो है वो खुदा के लिए अपने आप को मुकम्मल तौर पे सर्व करने की जरूरत है। Without no corruption, without no cheating, they served God sincerely, even pastors, even church, and even all our brothers and sisters. और बगैर किसी जो है बुरी नीयत से या गलत कामों से आपको खुदा को सर्व करने की जरूरत है, चर्च को सर्व करने की जरूरत है। कोई लालच नहीं, कोई किसी किस्म की बुराई नहीं होनी चाहिए। And now we became the biggest mission in Korea, and we become biggest church in Korea now. और हम देखते हैं कि अब हम इवन के कोरिया में जो सबसे बड़ा मिशन है वो हमारा ही है, हम एक सबसे बड़े मिशन का हिस्सा है। If you go Korea, you will see our church, you will be very surprised. अगर आप कोरिया जाएं और हमारे चर्च को देखें तो आप बड़े सरप्राइज हो जाएंगे। And we do the most biggest event in every big cities. और हम बहुत बड़े बड़े जो है वो इवेंट्स करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, सर्विस करते हैं बड़े बड़े शहरों में। And we are preaching 655 broadcasting station in the world. और हम जो है वो तकरीबन 356 चैनल्स 655 चैनल से ब्रॉडकास्ट होते हैं पूरी दुनिया के अंदर। It's amazing works of God. ये सच में एक बहुत बड़ा काम है खुदा का। Because of this word, क्योंकि इसी कलाम की वजह से, come who are labor and heavy laden, come to me and take my yoke, and my yoke is easy and light. Because of this word. क्योंकि यही जो वो अल्फाज हैं जो खुदा के, कि मेरा जुआ जो है वो उठाओ, मेरे मेहनत उठाने वाले बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, मुझसे सीखो, क्योंकि मेरा दिल जो है नरम और फरोतन है और मेरा जुआ मुलायम और हल्का है। इस वर्ड ने हमारी जिंदगी को तब्दील किया। During this COVID time, many restaurants, many business, many things are not easy, but our church become the most successful church in the whole world. हम देखते हैं इस कोविड के टाइम पर, जबकि बिजनेस बंद हो चुके हैं, काम काज कुछ नहीं है, कोई वर्क नहीं हो रहा, लेकिन हम अपने चर्च पे अगर देखें तो खुदा की बरकत इतनी ज्यादा है कि इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई काम हो रहा है तो वो गुड न्यूज मिशन चर्च में हो रहा है। Why? क्यों हो, ऐसा क्यों है? Because of the word of God. क्योंकि ये खुदा का कलाम है जो हमारी जिंदगी में चल रहा है। Pastor Park, he decided his life to give to Jesus. क्योंकि पास्टर पार्क ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी जिंदगी यीशु को देंगे। And all of us, we decide our life to be used in God.
और हम सब ने भी ये फैसला कर लिया कि हम अपने आप को खुदा को देंगे। That's why this blessing is possible for us. इसी वजह से ये जो ब्लेसिंग थी वो हमारे लिए जो है वो करामत साबित हुई। Even all of you also, you decide your heart to use your life and use your things for God. इसी तरह आपको भी अपनी जिंदगी में इस बात को सोचने की जरूरत है कि आप अपनी जिंदगी खुदा को दें। He will make you successful. वो आपको तभी वो आपको जो है वो काबिल बनाएगा। He will make you more bigger and bigger and bigger. वो आपको बहुत ज्यादा बड़ा बनाएगा। But if you're trying to do your own way, trying to survive by yourself, you will be small and small and small. लेकिन अगर आप अपने लिए अपने तरीकों से चलने की कोशिश करेंगे तो आप छोटे होते जाएंगे और घटते जाएंगे। And it's you who decide in your heart. और ये आप ही होगे जो अपने दिल से ही फैसला करोगे। You want to have a blessing in your life? अगर आप उस ब्लेसिंग को पाना चाहते हैं You be blessing. तो वो आपको ब्लेस करेगा। And then his blessing will come upon you. और उसकी जो ब्लेसिंग है वो आप पर आएगी। The other choice I don't want to mention. बाकी जो चॉइसेस हैं या काम है मैं आपके लिए आपको मेंशन नहीं कर रहा Because I've seen many miserable cases. क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे केसेस को देखता हूँ। And I want our brothers and sisters be blessed and taking and have a joy of participating in the works of God. और मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं खुदा के कामों के लिए। Thank you very much. शुक्रिया।